Okay, good evening, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, audible. Okay. So, good evening and welcome to the first class of Java programming. Myself, Sayyid Rashid Anwar. I have been associated with this organization since more than 3 years, I believe so. And I have been teaching Java and mostly programming languages C, C++, Java for quite a long time. Uh, Today, I have been given the task to uh, start and continue with the Java programming. So I have I believe that सबके पास syllabus मैम ने share कर दिया होगा, isn't it? Do you guys have the syllabus? Yes, sir. Okay. So quickly we'll start with the conceptual part, right? Without wasting any time, and I'll be sharing my screen also to make sure that everyone is able to see whatever I'm explaining. Okay. So see, in today's market, a lot of programming languages are there. Right. Just to name a few, we have the basic one, that is the C, and a bit advanced to C, we have the extension, that is the C++. Uh, Based on the principles of object-oriented programming, we have Python, Java, Visual Basics, and then the programming languages that the industry standards follows, like the Rust is there, R programming is there, Go is there, Swift is there, right? So a lot of programming languages have been introduced into the market, and most of them are in use today also. Even in today's such a competitive market, we also find the use of C programming also. So it's not like कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काफी पुराना है तो आउटडेटेड हो गया है और उसको रिप्लेस करके हम कुछ नया ले आए हैं. With the change of time and demand of the market, new programming languages keep on evolving. But to understand the gist, we have a core concept which is being evolved as per, let's say, change of hardware structure, change of our architecture, the inline architecture that is residing on the laptop or a computer or a smartphone to say so. Okay. So overall, these languages are evolving as and when required, uh, maybe to enhance or to increase the flexibility, to increase the speed, to increase the performance of the system, right? हो सकता है आज जब आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो उस पे अगर हम पुराना वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लगा देते हैं, एंड्रॉइड का कोई भी पुराना वर्जन उठा लेते हैं, तो वो जस्टिफाई नहीं करेगा, जस्टिस नहीं करेगा हमारे करंट हार्डवेयर को. करंट हार्डवेयर आर वेरी हाई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, लैग, इश्यूज ऑफ डेडलॉक्स, स्टार्वेशन, ये सारा चीज दिखाई नहीं देता है, हैंग नहीं होता है, सिस्टम स्लगिशनेस हट गया है. ओके. इवेंचुअली द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर विल इवॉल्व. उसको मैनेज और उसको अपलिफ्ट बनाए रखने के लिए हमें मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चाहिए. तो जावा हैज क्रिएटेड इट्स ओन, how do you say, popularity, has got its own set of users, programmers, developers who are still now using Java as the main source code to create applications, to create softwares, to test the programs. Okay. तो बेसिकली हम लोग को ये समझ में आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो somebody asks what is a programming language and what is the need of programming language. Right now we are communicating with each other. I said good evening, you all responded back with good evening. I would have said namaste, namaskar, salam, adab, anything. आप भी वैसे ही reciprocate करते हैं उसी language में most likely. So there is a language which both of us are understanding, either Hindi, English, or it could be any regional language which we both are comfortable with. तो हम इसमें communicate करते हैं आपस में, right? To exchange of ideas, to say something and to reciprocate that. मैंने आपको कुछ बोला, बदले में आपको उसको समझ करके जो करेक्ट ओपिनियन या आंसर होना चाहिए था उसके रिस्पॉन्स में आपने वो रिस्पॉन्स दिया. The thing is that here two people are communicating, so there has to be a language.
It could be a sign language. Two friends are communicating through eyes contact होगा, उस पे आप कुछ साइंस या जेस्चर्स देते हो जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होता है. टू पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर. People who are silent may speak the sign languages. We can communicate through a proper language. We can speak, we can listen, and we can reply to that. Similar to that, in order to communicate with computers, communication means I have to give some instruction to computer or to the machine, and based on that instruction or the input or a combination of input and instruction, the computer must reply with an output, must come with an output with a result. इतना सा आइडिया है. क्या है आइडिया? हम कंप्यूटर से कुछ काम करवाना चाहते हैं, तो इन ऑर्डर टू डू दैट हम अपने भाई, छोटे भाई को या अपने घर में किसी को अगर हम बोल रहे हैं प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, या हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक गिलास पानी ले आओ, so there has to be somebody who has to take that request or that instruction, understand it, and उसके अनुसार वो काम करेगा. सिमिलरली अगर कंप्यूटर को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, do XYZ task, so on behalf of the user, on behalf of the instructor or the programmer or the creator, the developer, the computer must understand the instructions and must give a proper output or a reply. This could only be possible with a programming language. Now the question arises, which type of programming language? There are so many programming languages. So, depending upon the necessity or the requirement, we choose a programming language. I'll give you a very good reference. हमारा इसरो जो हमारा है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो जब एक चंद्रयान या ऐसा कोई मिशन लॉन्च करता है, सैटेलाइट्स को रिलीज करता है स्पेस पे, तो रॉकेट के साथ जो सैटेलाइट लॉन्च होकर के जाता है, there are a lot of sensors attached to that device. Heat सेंसर होगा, प्रेशर सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर होगा, बाकी मेट्रिसेस जो भी होंगे उसको मेजर करने के लिए कुछ सेंसर्स होंगे, कुछ डिवाइसेस होंगे, किस फेज में कितना फ्यूल बर्न होना चाहिए, कब कौन सा डिवाइस इजेक्ट हो जाना चाहिए. All those things have to be taken care of, and these are very precisely monitored values. आप 19 से 19.1 अगर कर दे रहे हो तो एरर जनरेट होगा कि जिसके चलते पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है. एंड चंद्रयान 1 जो हमारा मिशन था उसका फेलियर रेट क्या था? कुछ फ्रैक्शंस के वैल्यूज के चलते ही वो ओवर लैंडिंग कर गया था, ओवर शूट कर गया था, isn't it? So the margin of error is very 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 minimum. आप चाहे ऑपरेशन सर्जरी कर रहे हो रोबोटिक्स के थ्रू, या कोई ऐसा लाइफ सेविंग ड्रग बना रहे हो जहां पे प्रेसिजन होना चाहिए कि क्वांटिटी कितना देना है उस मेडिसिन का, तो जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए है वहां पे सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, राइट? सो डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का काम है उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनते हैं. सी एंड सी प्लस आप कहाँ यूज करना प्रेफर करोगे? तो यहाँ पे सेंसर्स या हार्डवेयर से एसोसिएटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें चाहिए. Those languages which are more closely working in tandem with the hardware of the system, those places where you'll be using the C and C++. Okay. Now, where do you find Java? Java का बहुत importance कैसे बना? वो अपना स्कोप इस पूरे इवॉल्विंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साइकिल में कैसे बना पाया और इतना पॉपुलैरिटी कैसे गेन कर दिया? Java came into this world at a time जहां पे हमारे पास C++ जैसे सक्सेसफुल लैंग्वेजेस थे, पॉपुलर लैंग्वेजेस थे, इजी टू यूज लैंग्वेजेस थे. बट जावा जब आया उससे पहले के जितने भी लैंग्वेजेस थे वहां पे एक मेजर कंसर्न क्या था? दो मेजर कंसर्न थे. फर्स्ट, द सिक्योरिटी ऑफ डेटा. ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एस्पेक्ट होता है एक एप्लीकेशन जब आप डेवलप कर रहे हो. लेट्स से यू आर क्रिएटिंग एन एप्लीकेशन दैट इज एसोसिएटेड विद लेट्स से ट्रांजैक्शन ऑफ मनी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है या बैंकिंग सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो.
तो वहां पे हमारे पास सबसे सेंसिटिव क्या है, ऑल डेटा दैट यूजर इज गिविंग, हिज अकाउंट डिटेल्स, हिज पासवर्ड, every detail that the user is feeding into the system is very sensitive. तो इस टाइप के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना ओवर द लेट्स से नेटवर्क, ओवर द सिस्टम या ओवर द सॉफ्टवेयर, मल्टीपल यूजर्स राइट ना कर दे, ये सारे फीचर्स को जावा में प्रोड्यूस किया गया। उससे पहले सी में सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज सी वॉज बेस्ड ऑन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। C++ invented or came with a new programming paradigm that was object-oriented programming. तो यहाँ पे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हमारे साथ निकल करके आ गए हैं। If you guys want, you can take a note of it. Procedural oriented programming, that is POP, and object oriented programming, that is OOP. So you need to find out the difference between these two. Very important from an interview perspective. It is very important to have a understanding of what is POP and what is OOP. तो सी में कुछ इश्यूज थे, सी को ओवरकम करने के लिए नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने की कोशिश किया गया। मिड वे दे रियलाइज कि नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इशू नहीं है, द प्रोसीजर दैट वी आर फॉलोइंग इन क्रिएटिंग दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें इशू है। मतलब पीओपी कॉन्सेप्ट में इशू है, सी में इशू नहीं है। एंड बिकॉज पीओपी में इशू है, तो आप कोई भी लैंग्वेज पीओपी पे बेस करके बनाओगे, वो हमेशा वो इश्यूज को रिफ्लेक्ट करता रहेगा, दैट वोंट सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। तो लोगों ने सोचा उस टाइम कि चलो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोग्रामिंग पैराडाइम, न्यू कॉन्सेप्ट इन टोटलिटी। जहां पे हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि डेटा इज द मोस्ट सेंट्रिक पार्ट। डेटा के इर्द गिर्द, डेटा के अराउंड हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। प्रोग्राम का जो एवोल्यूशन होगा दैट विल बी अराउंड द डेटा। सो द मोस्ट सेंट्रल पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट discussion or that point should be data. Now, data का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? See, any raw input that the user is feeding is data. तो बेसिकली जब हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे इंस्ट्रक्शंस या कोड लिखते हैं, आपने ऐसे जितना भी कोड लिखा होगा, आप उस प्रोग्राम को बना करके जब रन करते हो और आउटपुट में जब कुछ इनपुट वैल्यूज फीड करते हो और एंटर मारने के बाद एक आउटपुट अगर कंप्यूटर रिप्लाई कर रहा है, यहां पे आपने कंप्यूटर को दो चीज प्रोवाइड किया। फर्स्ट, द डेटा, ओके, टेक माई डेटा, माई रोल नंबर, माई 5 सब्जेक्ट का मार्क्स ले लो, ऐसे कुछ भी आप वैल्यूज फीड कर रहे हो। और उसके साथ में इंस्ट्रक्शंस बताया कि इन वैल्यूज को लेकर इन डेटा को करना क्या है, कि 5 सब्जेक्ट का मार्क्स को लेकर के ऐड करो और टोटल मार्क्स, और उसके बाद एवरेज मार्क्स निकाल करके मेरा रिजल्ट दिखा दो, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड या फेल क्या हुआ। तो आपने डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों दिया बेस्ड ऑन द मैचिंग ऑफ डेटा विथ द इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर जो है या आपका जो भी सॉफ्टवेयर है जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके डेटा को लेता है, एनालाइज करने के बाद जो भी फॉर्मूला आपने वहां दिया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसको फॉलो करके एक रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। तो दो चीजों को यूजर ने प्रोवाइड किया, डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। दीज वैल्यूज आर प्रोसेस्ड बाय द सिस्टम। प्रोसेस करने के बाद एक आउटपुट जनरेट होता है। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल लग रहा है, यहाँ पे 3 चीजों पे खेल हो रहा है। आप 2 चीज प्रोवाइड कर रहे हो सिस्टम को, प्रोग्राम लिख के आपने इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया, डू दिस 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 दिस। कैसे करें? तो टेक माई डेटा, आप इनपुट को फीड करते हो, वो इंस्ट्रक्शंस को उसमें लेता है, एब्जॉर्ब करता है, एनालाइज करता है, जो भी फॉर्मूला दिया उसके बेसिस पे इवैल्यूएट करके रिजल्ट दे दे रहा है। तो रिजल्ट इज द थर्ड पार्ट। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। एक प्रोग्राम को जब भी आप आपसे विजुअलाइज करो, लेट्स से देयर इज अ प्रोग्राम गिवन टू राइट अ प्रोग्राम टू डू एक्स वाई जेड टास्क। ओके, आपको कुछ नहीं करना है, द टास्क इज वेरी सिंपल। आप उस प्रोग्राम को समझ करके अपने हिसाब से इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट 3 भाग में डिवाइड कर दो। आप जितना प्रोग्राम को तोड़ते चले जाओगे, जितना सिंपल वे में मॉड्यूलराइज कर दोगे, उतना आसान हो जाता है। बट उसी प्रोग्राम को अगर इन टोटलिटी देखना तो वो काफी डिफिकल्ट है एनालाइज करने के लिए। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रोग्राम जहां पे हम सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, बट थिंक अबाउट अ प्रोग्राम जहां पे आपने 25,000 लाइन ऑफ कोड लिखा हो, आपने 2 लाख लाइन ऑफ कोड लिखा हो,
उस प्रोग्राम को आप स्टार्ट से लेके एंड तक अगर विजुअलाइज करोगे, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आइदर फाइंड द एरर्स एंड रेक्टिफाई इट, और टू फाइंड कि किस लाइन में क्या एग्जीक्यूट हो रहा है. आप बहुत ही एक्सट्रीमली टैलेंटेड होंगे, पूरा कोड अपने लाइन बाय लाइन वक्त देकर के लिखा होगा, ओनली देन यू विल बी एबल टू फैच आउट क्योंकि सर लाइन एक्स वाई जेड में लाइन नंबर 29 में ये हो रहा है, लाइन नंबर 55 में ये हो रहा है. क्योंकि अगेन एन इम्पॉसिबल टास्क, उतना डीपली आपको याद रखने पर जरूरत भी नहीं है. So what we need to do is that we need to modularize, we need to break down the entire program into subsequent problems. छोटे छोटे पार्ट्स में भाग में तोड़ देने का है. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एटीएम ट्रांजैक्शन. आप एटीएम मशीन के पास जाते हो, कार्ड इंसर्ट करते हो, देन यू गेट 5 to 6 ऑप्शंस, राइट? कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज, या पैसा अगर किसी को भेजना है तो ये भी ऑप्शन आजकल आ गया है. So there are 4 to 5 or 6 options available with that ATM machine. You choose only one. So in totality, ATM machine is the program, is the larger program. Inside that larger program, you have sub problems. पैसा विड्रॉ करना है, so for withdrawal of money, there has to be some rules. कि आप इतना ही लिमिटेड निकाल सकते हो, और कैश उस मशीन में होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हो. उस करेंसी का, सॉरी, उस वैल्यू का होना चाहिए, है ना? 500 का नोट, अब तुम बोलोगे 550 निकालेंगे, इज दैट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज दैट मशीन हैज नॉट बीन कैलिब्रेटेड इन दैट वे कि उसमें 50 का नोट या 10 का नोट, 20 का नोट निकल पाए. 500 निकालता है, पहले 2000 निकालता था, अब सिर्फ 500, कई जगह पे 100 भी निकालता है. So in the multiples of 100 and 500, that is possible. बट आप ट्राई करना चाहोगे कि 525 रुपए निकल जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो ट्राई टू अब्सॉर्ब व्हाट आई जस्ट सेड इन द लास्ट 5 to 7 minutes. कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने लिया, इंटेंशन क्या है? आई नीड टू कीप सम इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, and based on the instruction along with the data that I'm feeding to that computer, it should produce an output. The idea is that much simple. Now, how will it produce the output? It must understand. The problem with the computer is what? Computer only understands one language, that is 0 and 1 binary. Is it clear till now? कोई डाउट है किसी का? Am I going too fast, too slow? Clear, sir. Clear. Okay. ठीक है. So कंप्यूटर के साथ इशू क्या आ गया? कंप्यूटर जो है वो हिंदी, इंग्लिश, कोई रीजनल लैंग्वेज दुनिया कोई लैंग्वेज नहीं जानता. वो it only understands the language of 0 and 1, that is binary. Whatever input you are giving, it only understands in the form of 0 and 1. Now imagine one thing, instead of saying good evening in the next class, I'll enter into the classroom and I'll say 1101101. Does that make any sense to any one of you? What did I say? What does that mean? 1101101. इसका मीनिंग क्या है, कोई बता सकते हो? एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो कोई? प्रीतम, व्हाट डिड आई से? रितेश? 110. हाँ, इसका मीनिंग क्या है? 1101101 इसका मीनिंंग क्या है? पूरी कोड उसको हम लोग या तो इसका डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं डेसिमल से. तो क्लैरिटी नहीं है, isn't it? Right? क्लैरिटी नहीं है. I said something which you could not understand, which you could not decode. अब यहाँ पे I think प्रीतम was saying that. तो प्रीतम के पास दो पॉसिबिलिटी था. उसने बोला कि हम इसको एक बाइनरी से डेसिमल में या किसी और वर्जन में कन्वर्ट करके देखेंगे कि क्या वैल्यू जनरेट हो रहा है. अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोले हैं जिसमें सिर्फ 0 और 1 का बात है. अगर दो न्यूमेरिकल वैल्यू बोले होते, आप उसको ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करके तब आप इवैल्यूएट करके बोल पाते सर आप एडिशन कर रहे थे या प्रोडक्ट मांग रहे थे, कुछ तो ऑपरेशन हुआ होता. वहां नहीं. So actually the idea is computer only understands binary language. Why? Because computer is an electronic device. Any electronic device will only understand the language of 0 and 1.
नाउ द चैलेंज बिगिंस। फिर वो तो समझ रहा है बाइनरी में, हम समझ नहीं पाते बाइनरी। इट्स नॉट एन इजी टास्क फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कि हम लोग बाइनरी समझ लें। हाँ ठीक है, हम में से कोई बहुत ही गुणवान व्यक्ति होता तो वो शायद मशीन लैंग्वेज समझ पाता। एंड देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, the cyber security people, the hackers, the coders are there to deep down कहीं ना कहीं इसको डिकोड करना जानते हैं, नंबर्स, बाइनरी नंबर्स कैसे काम करता है, एल्गोरिथम्स उसी पे बिहेव करता है। बट ऑन अ जनरल नोट, आई वांट टू गिव सम इंस्ट्रक्शन बट आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 0 and 1, द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। तो अब यहाँ पे क्या रोल आया, देयर हैज टू बी अ ट्रांसलेटर, देयर हैज टू बी अ ट्रांसलेटर, राइट। आप जाते हो साउथ या आप चले जाते हो महाराष्ट्र, वहां पे आप स्टेशन से उतरते हो, ऑटो वाले को, कैब वाले को आपको बोलना है कि भाई मुझे फलाना होटल में या हॉस्पिटल पहुंचा दो, काम है। वो हिंदी नहीं समझता, he only understands the language, the regional language मराठी। कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्या हम वहीं पे बैठ जाए, एक किताब लेकर के और मराठी पढ़ना सीख जाए? वक्त लगेगा, दैट्स नॉट अ फिजिबल टास्क। पॉसिबल है बट फिजिबल नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, इन दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम। या तो हम उसको हिंदी सिखा दे, अभी नॉट पॉसिबल, टाइम नहीं है हमारे पास। सीखेगा नहीं सीखेगा, लड़ाई हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। तो एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट कुड यू डू? आप बीच में एक ऐसे थर्ड पर्सन को खोजोगे जिसको दोनों लैंग्वेज आता है। आप उसे बोलोगे हिंदी में, ही विल ट्रांसलेट इट इनटू मराठी, ऑटो और कैब ड्राइवर विल रिप्लाई बैक in Marathi, that middleman will again reconvert it back to the language that I understand. इस तरह से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। So there has to be a translator, right? हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जाते हैं दूसरे कंट्री में, से रशिया के प्रेसिडेंट से मिलने गए, पुतिन साहब से। There has to be a translator जो रशियन लैंग्वेज को हिंदी या इंग्लिश में और हमारे हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज को रशियन में कन्वर्ट कर सके। Similar to that, you have a translator. Basically, there are three types of translators: compiler, interpreter and assembler. क्या आपने इन तीनों का नाम पहले सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So compiler, interpreter and assembler is there. So these are the three translators we use somewhere down the line. We'll only stick back to compiler and interpreter. Assembler के बारे में अभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। Let's say I'm using a programming language. I won't name any programming language. Let's say I'm using just a programming language. I write down the instructions. I want to run the program just to see कि आउटपुट सही दे रहा है या नहीं। मैंने प्रोग्राम रन किया, वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स थे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसमें। कंप्यूटर इसको कैसे जस्टिफाई करेगा? So there has to be either a compiler or an interpreter. What does the compiler and interpreter do? दो important aspects हैं, I'll try to touch down on both of them. First, both compiler and interpreter try to find out the syntactical errors, the basic common silly mistakes that we do. किसी एक कीवर्ड का स्पेलिंग गलत लिख दिया हो, फॉर्मेटिंग सही नहीं रहा हो, कहीं पे कॉमा सेमीकोलन देना पर्पस था, हमने मिस आउट कर दिया हो। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो सिंटैक्स का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ, कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट होंगे, यहाँ पे क्लोज होंगे, यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट होना चाहिए, यहाँ पे डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड होना चाहिए। अगर हम वो बेसिक सिंपल सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बना हुआ रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उस लाइन को डिकोड करने में कंपाइलर या इंटरप्रेटर को दिक्कत आएगा, तो वो एरर जनरेट हो जाएगा। So first of all, what they do is they try to find out the mistakes, the syntactical errors. अगर कहीं पे भी है तो वो बता देते हैं। Now comes the difference part. डिफरेंस क्या है कंपाइलर इंटरप्रेटर में? कंपाइलर इन टोटलिटी पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है। अगर उसमें 25 लाइन है, 500 लाइन है, सबको एक साथ कंपाइल करके टेस्ट करता है। जिन जिन लाइंस में उसको एरर्स दिखाई देते हैं
उस लाइन्स को मेंशन कर देता है कि भाई फलाना लाइन्स में आपके एरर्स से रेक्टिफाई कर लो. On the other hand, interpreter does the same thing line by line. आपके लाइन नंबर 15 में एरर आया, रुक गया, रिजॉल्व करो, फिर से स्टार्ट करो. 15 में एरर रेक्टिफाई हो गया है, 17 में एरर आया, फिर रुक गया, 25 में एरर आया, फिर रुक गया, 32 में एरर आया, फिर रुक गया. So it keeps on checking line by line. जब तक कि सारे लाइन से एरर हट नहीं जाते वो चेक करता रहेगा. तो पहला तो ये एरर चेकिंग, सिंटैक्स एरर्स को चेक करना. इन टोटालिटी वन बाय वन, कंपाइलर इंटरप्रेटर. सेकेंड पर्पस क्या है, अगर कोई एरर नहीं है या एरर था आपने रेक्टिफाई कर भी दिया, अब कोई एरर नहीं बचा, तो अब क्या काम करेगा कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ट्रांसलेट करेगा, कन्वर्ट करेगा. किसको, आवर सोर्स कोड, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड बोलते हैं. सोर्स कोड को मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा. मतलब हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज के जमाने में यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, दीज आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज. आपने सुना होगा बचपन में हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेजेस होते हैं. तो दिस इज व्हाट हाई लेवल लैंग्वेजेस. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, वैसे लैंग्वेज विच आर मोर क्लोजर टुवर्ड्स द यूजर. इसका जो लैंग्वेज रहता है वो मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में रहता है टुवर्ड्स द यूजर देन टुवर्ड्स द मशीन. मशीन के लिए डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करना. ऑन दी अदर हैंड मशीन के लिए ये आसान है कि लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाए, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज को एज ए प्रोग्रामर आप समझ पाओगे, इसमें इश्यूज आएंगे. तो हाई लेवल लैंग्वेज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यूजर रीडेबल फॉर्मेट rather than the machine readable format, and it is just opposite क्या हमारे पास low level language. So our program has to be converted from high level to low level. That conversion takes by the help of compiler or interpreter. Java very unique characteristics it possesses. C हमारा था जो compiler based language था, C++ भी compiler based language था, Python जो बन गया वो interpreter based language. Java इसमें बहुत unique feature रखता है. तो जावा क्या प्रोसेस करता है, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ बोथ द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर. अगर हम इस बात को समराइज कर रहे हैं तो इस तरह से बोलेंगे कि जावा यूजेस अ टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस. फर्स्ट फेज में उसका कंपाइलर जो है वो टेस्ट करता है, एरर्स बता देता है. बताने के बाद जब वो कन्वर्ट करता है हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, तो ये डायरेक्टली हाई लेवल से मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट होकर के एक इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है. Our Java source code, after verification, if there is no such error found, it tries to convert some source code to an intermediate code. This intermediate code is known as bytecode, B-Y-T-E, bytecode. This is an intermediate code which could neither be understood by the programmer nor be translated by the machine itself. अब बोलोगे सर ये तो बेतुका सा बात हो गया, ऐसा कोड भी क्यों हम उसको कन्वर्ट किए जो ना हमको एज ए यूजर समझ में आ रहा है ना मशीन उसको समझ के आउटपुट दे पा रहा है. There is a reason to it. There is a reason to it. और वो रीजन क्या है, सिक्योरिटी. जो हम सबसे पहला बात बोले जब जावा का इंट्रोडक्शन दे रहे थे, सिक्योरिटी के बारे में. ठीक है ना, ये ट्राई टू फाइंड इट आउट कि ये सिक्योरिटी के साथ क्या कंसर्न था, क्या चक्कर था जिसमें जावा जो है टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसा कर रहा है. तो सोर्स कोड हमने लिखा, हमने उसे कंपाइल किया, एरर्स कुछ नहीं आया, जावा कंपाइलर ने उसे ट्रांसलेट करके इंटरमीडिएट कोड दैट इज नोन एज बाइट कोड उसमें ट्रांसलेट कर दिया. तो बाइट कोड के बाद इस बाइट कोड को अगर हम फर्दर इंटरप्रेटर को डालते हैं, जावा इंटरप्रेटर को, तो वो इसको रन करके इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब मशीन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है. तो इफ आई मे रिकॉल, वी हैव अ सोर्स कोड, आप उसको कोड लिख करके आप सेव करके टेस्ट करते हो. तो पहले क्या होना चाहिए, सिंटैक्स एरर्स चेक करेगा, किया कोई एरर नहीं आया तो उसको वो सोर्स कोड को इंटरमीडिएट कोड दैट इज नोन एज बाइट कोड उसमें कन्वर्ट कर दिया. बाइट कोड से फिर हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है,
ऑब्जेक्ट कोड जो कि रन करके आउटपुट जनरेट करेगा. So this is how the entire Java functionality takes place. Clear है यहाँ तक? Any queries? Clear. Ritesh, Siddharth, Ashi, any queries? No, sir. सर एक क्वेरी है, जैसे जावा कोड से फिर वो कंपाइल हुआ, फिर बाइट कोड बना, तो जब हम लोग उसको डिफरेंट ओएस में सपोज विंडोज में या लिनक्स में रन करते हैं, तो दोनों का अलग बाइट कोड बनता है या सेम बाइट कोड को ही रन होता है? Okay. So a question has been raised, a very interesting question. ये हमारा नेक्स्ट पेज भी बनता कि हमने सर एक जावा कोड को कंपाइल किया और उसमें ऑब्जेक्ट कोड भी बना. अब उसको हम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर रन करना चाहते हैं तो आपको फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट कोड बनाना पड़ेगा या सेम पे बन जाएगा? See, this is the beauty that Java beholds. Java has been known as a platform independent language. आप कहीं भी जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ोगे, सॉरी, जावा के फीचर्स के बारे में पढ़ोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक जो आएगा उसमें से एक है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. तो व्हाट डज दिस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स? बोलने में बड़ा अच्छा लगता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, अब इसका मीनिंग क्या है वो भी समझते हैं. I write a Java code on my laptop. My laptop is a Windows operating system based, let's say 32-bit operating system है उसमें. I test my code, it's working perfectly fine. I want to share this code with, let's say, Ashif, Pritam and Siddharth. All the three people are having different operating system, different configurations in totality. किसी के पास एक Linux होगा, किसी के पास यूनिक्स का कोई और फीचर्स होगा, किसी के पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, किसी के पास विंडोज का ही 64-बिट आर्किटेक्चर वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेटेस्ट वर्जन. तो सबके पास डिफरेंट आर्किटेक्चर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम अवेलेबल. आपको अगर मेरा दिया हुआ जावा कोड रन करना है, आपको अपने सिस्टम में फिर से दोबारा कंपाइल करने का भी जरूरत नहीं है, दोबारा से उस ऑब्जेक्ट कोड को क्रिएट करने का भी जरूरत नहीं है. आपके पास बाइट कोड है, आप बस उसको रन कर पाओगे, प्रोवाइडेड दैट योर सिस्टम डज हैव जावा वर्चुअल मशीन. आपको अपने सिस्टम पे इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सा हार्डवेयर आर्किटेक्चर है, कौन सा प्लेटफॉर्म पे सिस्टम बना है, कौन सा वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम का आप यूज कर रहे हो, सेम है या डिफरेंट है, कुछ मैटर नहीं करेगा. सिर्फ एक चीज मैटर करेगा कि आपके पास जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है या नहीं है. इफ इट इज इंस्टॉल्ड, आपका सिस्टम जो है वो जावा कोड्स को रन कर सकता है, वो रीड कर सकता है. Did you get your answer, Pritam? Yes, sir. ठीक है. तो ये अगेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. आगे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस से सवाल उठा तो अब जवाब आया हमारा जावा वर्चुअल मशीन तक पे. वर्चुअल मशीन मतलब मशीन जब तक यूज करते हैं तो समझ में आता है फिजिकल कंपोनेंट्स होगा, है ना, टेंजिबल पार्ट्स होंगे. लेकिन सर हम लगा दी वर्चुअल मशीन, तो है एक्चुअली वो पीस ऑफ कोड, एक सोर्स कोड या एक एप्लीकेशन का सही मानो. लेकिन जब उसको हम रन करते हैं अपने सिस्टम पे या इंस्टॉल करते हैं तो एक मशीन जैसा ऑपरेट करता है. एंड मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन. इसका रोल क्या है? ये जो हमारा सोर्स कोड है इसको वो अंडरस्टैंड करेगा, ट्रांसलेट करेगा, जावा के जो लाइब्रेरीज हैं उनको पहचानेगा, उनसे मेरे कोड्स को एसोसिएट कराएगा और इंस्ट्रक्शंस के अनुसार जो आउटपुट आना चाहिए वो दे देगा. So whenever we try to download and install a software in general, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उस सॉफ्टवेयर में है क्या एक्चुअली? कुछ लाइब्रेरीज है, कुछ पैकेजेस है, कुछ फंक्शंस है जिनको आप चाहते हो कि आपका सिस्टम पहले से अंडरस्टैंड करके रेडी रखा रहे ताकि उससे एसोसिएटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन मिले तुरंत से उसको समझ पाए. तो हमारे पास क्या है? एक हार्डवेयर है, लैपटॉप समझते हैं हार्डवेयर है,
उसके ऊपर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन रोल क्या है? टू गवर्न द ओवरऑल फंक्शनैलिटी एंड द वर्किंग ऑफ द सिस्टम ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर। यूजर के बिहाफ में हार्डवेयर को रन कराना, गवर्न करना, मैनेज करना, ऑल द रिसोर्सेज। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम से है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हमने अपना XYZ सॉफ्टवेयर डाल दिया, है ना, इन जनरल सॉफ्टवेयर डाल दिया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या है? स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, तो उनका स्पेसिफिक टास्क है। उसी तरह से हमने जैसे टर्बो सी कंपाइलर डाल दिया, तो टर्बो सी इज ओनली मेंट टू रन सी कोड्स, नॉट द जावा कोड्स। जावा के लिए आपको चाहिए तो आप नेटबीन्स लेकर के आओगे, या VS कोड पे अगर आप काम करते हो तो VS कोड पे आप क्या करोगे, जावा से रिलेटेड जो पैकेजेस है आप उसको इंस्टॉल करोगे, ताकि हमारा VS कोड जो है वो प्लेटफॉर्म रेडी हो जाए जावा के कोड्स को समझने के लिए। तो यू नीड टू गो टू अ वेबसाइट। पहले जावा का खुद का वेबसाइट होता था, जावा को इन कर लिया गया ओरेकल ओरेकल द्वारा। तो ओरेकल की वेबसाइट पे आप जाते हो, आप डालते हो जावा JDK, जावा डेवलपमेंट किट। JDK आप डाउनलोड करोगे, तो जब आप डाउनलोड करने जाओगे उस वेबसाइट पे, वहां पूछेगा आपका भाई कौन सा सिस्टम है। ठीक है, वहां पे तीन चार या बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, विंडोज है, विंडोज वीडियो 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, या 64 है, 64 है तो X32 है, X64 है, सॉरी X64 है, X86, दो आर्किटेक्चर चलता है हमारा। इन दोनों में से कौन सा है? 32 बिट है, 64 है, ये सारा हो गया। देन वो मैक OS के बारे में पूछता है, उसके बाद लिनक्स है, सोलरिस है, किस टाइप का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बता दो। तो मेरा अगर है कि X64 आर्किटेक्चर पे बेस है, तो मैंने उसको डाउनलोड कर लिया, JDK को। डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल हुआ तो लाइब्रेरी पैकेजेस आ गए सारे, आके एक फोल्डर में बस गए हैं। हमको एनवायरमेंट वेरिएबल में पाथ सेटअप कर देना है, JDK का JRE का बाइनरी फाइल्स को रीड करने के लिए। द मोमेंट आई सेटअप दीज थिंग्स, एनवायरमेंट रेडी हो गया है। नाउ माई सिस्टम इज रेडी टू अंडरस्टैंड व्हाट जावा कोड मीन्स। तो ये जो हो रहा है बैकड्रॉप पे, इसको कंट्रोल जो है जावा वर्चुअल मशीन कर रहा है। यू डाउनलोडेड JDK जावा डेवलपमेंट किट, यू डाउनलोडेड JRE जावा रन टाइम एनवायरमेंट। आज के टाइम में बंडल्ड पैकेज आता है, JDK के द्वारा ही हो जाता है। तो JDK JRE आपने डाउनलोड की, इंस्टॉल किया, फाइल्स आ गए हैं, पैकेजेस रेडी हैं, कंप्यूटर इज रेडी टू अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द फॉर्मेट ऑफ जावा। आप इस प्रोग्राम को रन करते हो, JVM वहां पे फ्रंट सीट पे आता है, कोर्स को समझता है, एनालाइज करके जो रेस्पॉन्स आना चाहिए वो रेस्पॉन्स जनरेट करके दे देता है। तो ओवर द हार्डवेयर, ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइज वन मोर इंटरफेस, दैट इज योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर रहा है आपके बिहाफ में, लेकिन क्योंकि आप सिर्फ उस पर्टिकुलर इंटरफेस को अभी देख पा रहे हैं, तो उस इंटरफेस से आप सिर्फ इंटरेक्ट कर रहे हो अभी। So this is how a programming language, specifically I'm talking about Java, in general looks like. ठीक है, ये पूरा ओवरऑल आर्किटेक्चर के बारे में हमने अभी आज तक बात की है। कोई डाउट है यहाँ तक? आगे मूव करें, सिद्धार्थ, रितेश। Shall we move forward? प्रीतम, काशी। JDK का यूज एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे। JDK is known as Java Development Kit या Java Development Tool Kit, ये एक सॉफ्टवेयर है। JDK और JRE दो अलग अलग आते थे पहले। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर ओरेकल की वेबसाइट पे जाओगे, लेट मी शो इट टू यू, जस्ट होल्ड ऑन। ओके,
आई होप सो विंडो विजिबल होगा सभी को, राइट? तो देखो सर्च बार में मैंने क्या लिखा, जेडीके डाउनलोड। तो पहला वेबसाइट जो शो कर रहा है दैट इज ऑफ ओरेकल। ओरेकल होस्ट द जावा कंपोनेंट्स। आई क्लिक ऑन इट। दिस इज द होम पेज। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है जेडीके 26। 25 भी अवेलेबल है, जेडीके 21 वर्जन भी अवेलेबल है। अगेन और नीचे आते हैं, यहाँ पे 3 वर्जन मुझे दिखाई दे रहा है लिनक्स का। जस्ट सेकंड, दूसरा पेज खुल गया है। जस्ट सेकंड, इन टास्क को या दिस इज द होम पेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 3 वर्जन दिखाई दे रहा है। करंट एडिशन इज 26, जेडीके 25 लास्ट एडिशन था, और उससे पहला जो था 21 था। तीन है, 3 ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से भी शो कर रहा है, लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इफ आई सेलेक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, सी x64 compressed version, x64 का इंस्टॉलर है, MSI इंस्टॉलर। तो डिफरेंट वर्जन अवेलेबल। ठीक है, हम लोग इसको यूज क्या करते हैं, इंस्टॉलर को हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो वंस यू क्लिक ऑन इट द पैकेज विल गेट डाउनलोडेड। आप उसको इंस्टॉल करोगे, आपके सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल्स में आकर के वो बस जाएगा। यहाँ से फिर वो JVM इंस्टॉल हो जाता है। तो once we install these things and we set up the environment variables, next class most likely I will try to show how the installation works. ठीक है, बाय द टाइम बहुत सिंपल, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, 2-3 स्टेप में आराम से वो इंस्टॉल होकर रेडी हो जाता है, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो once the JDK and JRE is downloaded and installed on your system, JVM is ready to understand your codes, Java codes. अब यहाँ पे क्या है, बहुत 2-3 कंपोनेंट्स और आकर के जुड़ते हैं जेडीके के साथ। तो एक तो हो गया हमारा क्या, जेवीएम आ गया, तो वो कोड को एनालाइज करके आउटपुट जनरेट करने में हेल्प कर रहा है। सेकेंडली एक और चीज है दैट इज नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट या memory cleaner kind of thing. I'm unable to recall the exact terms. So that is a memory management concept. What happens is that हम लोग जब बहुत सारे प्रोग्राम्स रन कर जाते हैं, हम लोग प्रोग्राम को ओपन करते हैं और मिनिमाइज कर देते हैं, किल कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, उसको प्रॉपर वे में बंद नहीं करते हैं। हमारा कंसर्न क्या है, प्रोग्राम लिखे, रन किया, आउटपुट आ गया, वी आर सेटिस्फाइड। वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि हम जो प्रोग्राम बनाए और रन किए उसमें वेरिएबल्स को वैल्यूज डाले, तो एटलीस्ट वो टेम्पररी बेसिस के लिए मेमोरी कैप्चर किया, इजंट इट? आप कोई भी वेरिएबल का वैल्यू डालोगे तो मेमोरी चाहिए स्टोर करने के लिए। तो मेमोरी जो कैप्चर हो गया, ब्लॉक हो गया, जितना भी छोटा मेमोरी क्यों ना हो, तो कैप्चर तो हो रहा है। हम 25 बार एक प्रोग्राम को रन करते हैं, 25 बार हो तो मेमोरी कैप्चर हो रहा होगा, हर बार एक नया ब्लॉक ऑफ मेमोरी। तो हम जब प्रोग्राम से बाहर आ गए, उस मेमोरी का क्या हुआ? देयर हैज टू बी अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जहां पे जावा के पास एक अपना उसका क्लीनर है काइंड ऑफ, या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जो कि जब उसको समझ में आता है कि मेमोरी जो है बस यूं ही ब्लॉक करके रखा हुआ है, इसका और फ्यूचर में इन वैल्यूज का यूज नहीं है, तो क्लीन कर देता है।
मेमोरी को क्लीन करता है, डेटा को वहां से इरेज कर देता है। अब आप समझो कि सर ये तो लेस देन 1 KB रहा होगा या 8 KB 2 KB, उससे हमारा क्या फर्क पड़ेगा, कितने ही प्रोग्राम ऐसा लिख लेंगे जिसमें मेरा 1 GB तक का डेटा या मेमोरी स्पेस कैप्चर हो जाएगा। ये तो MBs में भी नहीं आ रहा है सर, क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स या डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन या फ्रैगमेंटेशन। इसमें क्या होता है, आपके जो मेमोरी चंक्स जो बीच बीच में जो ब्लॉक होकर के रह गया है, जिसके कारण आप एक लार्जर साइज फाइल को नहीं स्टोर कर पा रहे हैं। आपके पास 1 GB 1.2 GB 1.5 GB स्पेस, मेमोरी स्पेस अवेलेबल रहा होगा, बट इन टोटलिटी एक लमसम जगह पे नहीं है, वो क्या ब्रेक हो के है, जिसके चलते आप अपने लार्जर फाइल ऑफ लेट से 900 MB या 1 GB आप स्टोर नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या है, कंटिन्यूअस पूरा स्पेस चाहिए 1 GB का। आपको क्या मिल रहा है, कहीं 200 MB, कहीं 300 MB, कहीं 400 MB ऐसे मिल रहा है, और बीच बीच में कुछ कुछ छोटा छोटा फाइल साइज स्टोर किया हुआ है। तो ऐसे में आप कैसे इंस्टॉल करोगे? आप बोलोगे सर मेरा स्पेस दिखाई दे रहा है लेकिन हम इंस्टॉल नहीं कर पा रहे हैं। ये इशू आज के टाइम में परहैप्स हमें अपने स्मार्टफोन में नहीं दिखाई देता है, ऑल थैंक्स टू बिकॉज वहां पे स्मार्टफोन स्मार्ट क्यों बोला जाता है, यही सब रीजन है कि वो मेमोरी क्लीन कर देता है, फ्रेगमेंटेशन को ये डिफ्रैगमेंट कर देता है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स दैट वी सी, जहां पे या जिसकी मदद से वी एनालाइज या वी रियलाइज कि ओके जावा में हमें ये बेनिफिट्स या फीचर्स मिल रहे हैं, जहां पे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करके रन कराने में JVM जावा वर्चुअल मशीन इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स, जहां जिसके थ्रू हमारा मेमोरी यूटिलाइजेशन जो वो इम्प्रूव हो जाता है। So this was what all about the JDK and JRE. JRE is nothing but a Java runtime environment. हम लोग जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक उसको एनवायरमेंट चाहिए जिसके अंदर प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर सके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लार्जर प्रोग्राम, जहाँ पे आप पैकेजेस, फोल्डर्स, फाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक तो प्रोग्राम हमने कैसे प्रोग्राम लिखे, रन किए, उसका आउटपुट कंसोल विंडो आया, वहां पे हमने इनपुट डेटा दिया और आउटपुट रिजल्ट आ गया। क्लोज कर दिया प्रोग्राम, सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया। नॉट द प्रोग्राम, द डेटा दैट यू हैड गिवन एज इनपुट। अब तुम चाहते हो कि सर हम 10 स्टूडेंट का मार्क्स स्टोर करके रखे और 1 महीने बाद फिर उसमें 5 स्टूडेंट्स का नया रिजल्ट उसमें इनपुट करें, तो आपको एक फाइल चाहिए। फाइल एक एक्सटर्नल फाइल होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फाइल या टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल होगा, MS Excel पे होगा, वर्ड पे होगा, कहीं किसी फॉर्मेट में तो होगा वो फाइल, आइदर टेबल फॉर्मेट पे या रो ऑर्डर में होगा। तो इन फाइल्स को एक्सटर्नली इंपोर्ट करना, अपने प्रोग्राम के साथ मर्ज करना और उस पर इवेल्युएट करना। लेट्स से मेरे पास एक एक्सटर्नल फाइल है, एक्सेल फाइल इमेजिन करो, जिसमें मैंने एक 50 स्टूडेंट्स के क्लासरूम का जावा का मार्क्स स्टोर कर रखा है। नाउ बेस्ड ऑन दैट saved value, I want to see who got the highest marks, who got the highest marks। तो हमको पहले उस फाइल को एक्सेस तो करना पड़ेगा। There has to be an environment where the code also understands an external file, कि भाई जिस फाइल को तुम यूज करना चाह रहे हो कौन से टाइप का है, किस फॉर्मेट को बिलोंग करता है, whether that format is readable by JVM or not। अगर उस फॉर्मेट का नहीं है तो एरर दे देगा, अगर है तो उसको डेफिनेटली ओपन करने की कोशिश करेगा, और ओपन करने के बाद उसमें जितने भी कंटेंट है उसको सारे को फेच करने की कोशिश करेगा। सो देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस टू दैट। सो दिस इज हाउ जावा वर्क्स ऑन अ बेसिक नोट। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन। आई होप सो कि समझ में आया कि जावा एक्चुअली कितना या कैसे काम कर रहा है। परहैप्स समवेयर डाउन द लाइन पाइथन भी इसी रोड मैप को फॉलो करता है, बट ऑन अ मच लाइटर वे। हम लोग को जावा में बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ता है, उससे कंपैरेटिवली काफी कम कोड में आप पाइथन पे प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो लेट्स नॉट गो ओवर कि पाइथन का बेनिफिट्स क्या है, जावा का डिमेरिट्स क्या है। आवर कंसर्न इज वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट अ पीस ऑफ कोड इन जावा और अपने सिस्टम में उसको रन करके
अपने सिस्टम से जाए उसका आउटपुट एक्सट्रैक्ट करा सके। Any other doubt? Anyone? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, Okay. yes. Okay. Now, अब तो एनवायरमेंट समझ में आया हम लोगों को। हम लोग क्या किए, जावा के लिए जेडीके जीआरई हो गया ना, प्रोग्राम लिखिए कहाँ पे। हाँ, ये भी एक एस्पेक्ट है, प्रोग्राम कहाँ लिखे। आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर जावा का कोड स्पेसिफिकली सिर्फ जावा के एनवायरमेंट में रन करना है, सो यू नीड एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, IDE. Your VS Code editor is an IDE, but that is not a specific IDE related associated only with Java. आप वहाँ पे C++, Kotlin, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आप वहाँ पे प्रोग्राम लिख के रन कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने उसका एनवायरमेंट सेटअप कर रखा होगा। अगर स्पेसिफिक जावा के लिए चाहिए है तो यू नीड आइदर एक्लिप्स IDE और यू नीड नेटबीन्स IDE। दो नाम मैंने बताया, एक्लिप्स या नेटबीन्स। आज के टाइम में जो मोस्ट फेवरेबल है, लोग नेटबीन्स यूज करते हैं। इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आपको कौन सा फेवर करता है। अगर आपके पास ये दोनों ही नहीं है सॉफ्टवेयर, आपके सिस्टम में बाय डिफॉल्ट नोटपैड रहता है, कोई भी नोटपैड एडिटर लेकर के आ जाए, उसमें कोड लिखो, सेव इट, कंपाइल इट, रन इट। यू ओनली नीड वन थिंग, JVM। ये जावा सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल होगा आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे। डाउनलोड किए, JVM इंस्टॉल हो गया, रेडी हो गया, नोटपैड पे कोड लिखे, सेव किए, .java एक्सटेंशन लेकर के कंपाइल किए, कोई एरर नहीं आया, रन कर दिए, आउटपुट आ गया। तो बहुत सिंपल तो लग रहा है, किया जा सकता है, डेफिनेटली किया जा सकता है। In order to write a hello world program जिसमें कोई अरिथमेटिकल, लॉजिकल या किसी भी तरह का इंटरप्रेटिव काम है ही नहीं, is just a pure simple sentence that has to be printed। ना आप यूजर से कुछ इनपुट ले रहे हो, ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, ना कोई स्ट्रिंग है, कुछ नहीं, सिंपल एक आउटपुट वहां पे प्रिंट कर देना है, हेलो वर्ल्ड। इसके लिए हमें क्या चाहिए, आप नोटपैड पे जावा का जो लिखने का ढंग है वो पता कर लो, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, उतना लिख दो, सेव करो, सेव योर फाइल विद एन एक्सटेंशन .java, कंपाइल करो, रन कर दो। मजा तो तब आए जब हमने रन किया और आउटपुट में एरर आ जाए, उससे भी बढ़ करके एरर के बदले एक्सेप्शन आ जाए। अगर एक बार में आउटपुट आ गया है तब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। आउटपुट में एरर नहीं, एरर आ जाता, आउटपुट नहीं आकर के, तब मजा है। तब हम बैठेंगे एनालाइज करने, चिंतन करने, सोचने, गंभीरता से बैठ के देखेंगे कोड को, भाई किस लाइन में क्या मिस्टेक कर गए, स्पेलिंग मिस्टेक था, क्या था। अगर ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो एक और ऑप्शन है। क्या है एक ऑप्शन, आप वेबसाइट पे यहाँ पे जाकर के देखो, क्या लिखोगे, सिंपली गूगल पे सर्च करो ऑनलाइन जावा कंपाइलर, नीचे में आपको ऑप्शन भर के मिल जाएंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन देता है प्रोग्रामिंग, एक वेबसाइट है उसका, सेकेंड ऑनलाइन VDB है, इसका भी है, ऐसे करके बहुत सारे मिल जाते हैं। विच आई प्रेफर इज ऑनलाइन GDB। कुछ इस तरह का फ्रेम उसका या इंटरफेस दिखाई देता है। बैकग्राउंड पूरा डार्क है, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है। यू डू नीड टू डू वन थिंग, दैट इज ऊपर एक रन का बटन मिलेगा ग्रीन कलर का, क्लिक करोगे, नीचे में आउटपुट विंडो आ जाएगा। दिस इज हाउ यू सी एंड वेरीफाई करते हो कि हाँ मेरा प्रोग्राम सही रन कर रहा है। अब इसमें आप प्रोग्राम में अपना कुछ इंस्ट्रक्शन बढ़ा लो, कुछ लाइन अपने से लिख दो।
ठीक है, तो यह मल्टीपल ऑप्शंस एटलीस्ट फॉर द बेसिक पार्ट ऑफ जावा कि इसको हम अपने सॉफ्टवेयर में नहीं, जैसा मेरे पास अभी हम इंस्टॉल किया, मेरे सिस्टम फेवर नहीं कर रहा कि इंस्टॉल कर पाए, तो ऑनलाइन एडिटर पे काम कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन एडिटर भी एक ऑप्शन है और इसमें फंक्शन, अरे, स्ट्रिंग, इन सबसे एसोसिएटेड प्रोग्राम्स एटलीस्ट रन कर जाएंगे। हाँ, एक्सेप्शंस का होगा या पैकेजेस का होगा या फाइल हैंडलिंग का प्रॉब्लम होगा, शायद इस पे रन ना कर पाए सही से। ठीक है, सो आपके सिस्टम के ऊपर अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है या नहीं हो पाता है या आप नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो, एनी सच रीजन, ऑनलाइन वेबसाइट पे पोर्टल्स अवेलेबल है, डू विजिट दैट, वहां पे कोड लिख करके टेस्ट करेंगे। आवर मेजॉरिटी क्लासेस विल बी बेस्ड ओवर हियर इटसेल्फ। जस्ट अ सेकंड। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट प्लीज। ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड द एस्पेक्ट जहाँ पे हम लोग ने बेसिक समझा कि जावा क्या है, किस तरह से बिहेव करता है, क्या कंपोनेंट्स चाहिए उसको इंस्टॉल और रन करने के लिए। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग प्रोग्राम के अंदर आएंगे डायरेक्टली, कंपोनेंट समझेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होता है, इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट्स क्या है, और जावा के प्रोग्राम रन करके उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने का कोशिश करेंगे। In the next class also I'll be sharing few more things related to which books you should prefer, कहाँ से notes मिल सकता है। Although this is the era of chat GPTs and Groks जहाँ पे सब कुछ एक बार इंस्ट्रक्शन देने पे ही सारा कुछ मिल जाता है हमें, बट let's not stick to those things because that's not the trustworthy things। सारा कुछ वो 100% accurate देता है ऐसा भी कोई बात नहीं है। There are some inaccuracies found in those things also। uh, we'll try to stick to all those things which are associated with the research and the libraries available on Java forum। और जो बुक्स के अनुसार जो बात सही है, जो बात वेरीफाइबल है या वेरीफाइड है, उस पर हम लोग स्टिक रहेंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट वाकई आज के टाइम में भी एप्लीकेबल है या नहीं। सिलेबस हमारा काफी बड़ा है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम योर साइड, फ्रॉम माई साइड, कि हम लोग साथ में मिलकर ये काम करें। आई होप तो सबके पास लैपटॉप वर्किंग कंडीशन में होगा, अगर नहीं है विद इन नेक्स्ट 15-20 डेज कोशिश कीजिए कि वर्किंग कंडीशन में हो।
इंस्टॉल नहीं भी कर पाएंगे तो एटलीस्ट हम ऑनलाइन मोड पर एटलीस्ट उसको रन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है किसी के पास, एनीथिंग?